سب سے پہلے ہم خبر دیں گے اومیکرون کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ کیا کیا پابندیاں لگیں گی؟ اسکول کھلے رہیں گے یا بند کیے جائیں گے؟ فیصلے کے لیے صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے نئے SOPs کا فیصلہ بھی آج ہی کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ اومیکرون کا خطرہ اب تیزی سے منڈلانے لگا ہے۔ اب اسی کے پیش نظر کیا کیا نئی پابندیاں آج لگیں گی؟ اسکول کھلے رہیں گے یا اسکولوں میں بھی تعطیلات کو مزید آگے لے کے جایا جائے گا؟ فیصلے کے لیے صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس آج بلا لیا گیا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے نئے SOPs کا فیصلہ بھی آج ہوگا۔ تمام وزرائے تعلیم جو ہیں وہ آج کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ مزید بھی کچھ دیگر وزراء آج کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں کچھ نئی پابندیاں لاگو ہونے کا بھی امکان ہے، اور شادی ہال کے لیے نئے SOPs کا بھی آج فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا SOPs لاگو کیے جائیں گے یا کس طرح سے آگے اس چیز کو لے کر چلا جائے گا۔ صحت کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ملتان میں گیسٹرو وبا قابو میں نہ آ سکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 179 مریض رپورٹ ہوئے۔ نکتر اسپتال میں 53 گیسٹرو کے مریض لائے گئے ہیں۔ چلڈرن کمپلیکس میں گیسٹرو کے 61 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں 31، ٹاؤنز اسپتالوں میں 33 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ ناقص غذا اور پانی کا استعمال جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ملتان میں گیسٹرو وبا قابو میں نہ آ سکی۔ 24 گھنٹوں میں گیسٹرو کے 179 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مختلف اسپتالوں میں یہ کیسز لائے گئے ہیں۔ نشتر اسپتال میں 53 گیسٹرو کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ چلڈرن کمپلیکس میں بھی گیسٹرو کے 61 مریض داخل ہیں۔ ابھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مہنگائی اور کھاد کے دم دستیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 21 جنوری کو کسان مارچ، جبکہ 27 فروری کو لانگ مارچ کیا جائے گا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے امجد ملک سے۔ امجد، بتایا گیا اس لانگ مارچ کے حوالے سے۔ جی بالکل، پنجاب کے اندر جو کھاد ہے وہ بالکل نایاب ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسان مارچ اور اس کے بعد لانگ مارچ کرنے کا جو ہے اعلان کر چکی ہے۔ 21 جنوری کو ملتان سے اور جنوبی پنجاب سے جو لانگ مارچ کسان مارچ نکالا جائے گا، اس کے بعد لانگ مارچ کا بھی جو ہے ترتیب دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا تیاریاں کر رہی ہے، کیا کیا مطالبات ہیں، اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ ہمارے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ملتان کے ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی صاحب۔ انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ تو کراچی سے شروع ہوگا اور ہم اسلام آباد جائیں گے، اور یہ جو کسانوں کی کال ہے یہ ہم اس سے پہلے کر رہے ہیں۔ اس ملک میں 70% لوگوں کا کسان جو ہے ان کا زراعت سے وابستہ لوگ ہے۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو زرعی ملک میں آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کھاد اویلیبل نہیں ہے۔ مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ بجلی ہر ماہ بڑھا دی جاتی ہے، پیٹرول ہر ماہ بڑھا دیا جاتا ہے، غریب آدمی انتہائی تنگ ہے۔ ہماری تو یہ گزارش ہے کہ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، جس میں غریب، کسان، مزدور، طالب علموں کی سب کی بقا اس میں شامل ہے۔ یہ لانگ مارچ ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہوگا، جس میں تمام ضلعوں کی تنظیمیں پیپلز پارٹی کی، شہر کی، ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہ ہوگا اور وہیں پر اس کا سٹارٹ ہوگا۔ تو جو بڑا لانگ مارچ ہے جو ہم نے اسلام آباد جانا ہے وہ کراچی سے شروع ہوگا، اور اسلام آباد میں ہم پڑاؤ ڈالیں گے اور اس وزیر اعظم کو جو یہاں پر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کو گھر بھیج کر ہی ہم نام دیں گے۔ پیپلز پارٹی جو ہے پہلے سے ہی تیار ہے اور باقاعدہ طور پہ کچھ میٹنگز بھی کال کی گئی ہیں، بیسیکلی مہنگائی کے لیے، کسانوں کے لیے، اور اس حوالے آج احتجاج کے 27 کو لانگ مارچ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ امجد ملک، شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کی قیادت ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات سردار عباس گورچانی نے کی ہے۔ مزید احوال جانیں گے، عاشر اشفاق نے ہمیں جوائن کیا۔ عاشر، بتائے گا احتجاج کے حوالے سے۔ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات و نشریات عباس گورچانی اس احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں۔ کافی بڑی تعداد میں جالے بھی موجود ہیں۔ مہنگائی کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے، مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، کیا مطالبات ہوں گے؟ مطالبات یہ ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے فوری طور پہ، اس کا کام نہیں ہے گورنمنٹ چلانا، کیونکہ مزدوروں، کسانوں اور عوام پہ ہر روز جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، کبھی میڈیسن مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرول 15 دن کے بنیاد پہ بڑھتا جا رہا ہے، غریب آدمی خود سوزیوں پہ مجبور ہیں۔ اور آج 24 تاریخ کو پیپلز پارٹی نے جو اعلان کیا ہے ڈاٹ والی پل پہ
किसानों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपना दमादम मस्त कलंदर का नारा लगा दिया है, क्योंकि वो 27 को कराची से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला पहले भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब मजदूरों और किसानों के साथ दिया था, उनके रोज़गार के लिए कुछ काम किया था। आज भी बिलावल भुट्टो के इंशाअल्लाह ताला साथ हैं। यही गवर्नमेंट रही तो लोग खुद सोचों से मजबूर और आधी दुनिया रह जाएगी इधर। जी, यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर यही कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसके बाद सड़कों पर निकले मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को कम किया जाए। और खसूसी तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स अपडेट किया। अब बात करेंगे खाद बहरान के हवाले से। बहावलपुर में यूरिया खाद का बहरान जारी है। काश्तकारों के लिए खाद का हसूल आसान नहीं रहा। खाद के दम दस्तियाबी पर किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों का महकमा ज़राअत ने मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम भी सामने आया है। मज़ीद बात करेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद, बताइएगा क्या कहते हैं काश्तकार? में खाद बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, जिसके हवाले से शहरी और काश्तकार जो है वो सरापा एहतजाज है। क्या कहेंगे भाई? ज़राअत रिश्वत खोर सारा कम ज़राअत करनी पिए, 50 बोरी 100 बोरी एक बंदे उड़े नहीं पिए। और वो गरीब जो है ना रुल रहे हैं सब। वो फिर ब्लैक करते हैं, बाहर जाकर ब्लैक करते हैं, 2500 रुपए की बोरी देते हैं जाकर। 2500 में लो जितनी मर्जी मिल जाती है, रेट पे नहीं मिल रही है। सवेर देने ये जो वाले खाद काटते पुलिस आने धक्के मार दे काटे नहीं कोई खाद का नहीं भाजो ये जो वाले पुलिस गुस्सा नहीं ये ऐसा सवेर देने काम कर मजदूर आदमी जेल सारी कड़क खाद ने बोल क्या थी कैसे काला मार। भाईजान आप थोड़ा वेट कर लें, शाम को ईशा के बाद देखें, इधर ट्राला आएगा और ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोड होके ये कहाँ जाती है कोई पता नहीं है, ब्लैक की पे पता नहीं। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि आटे का बहरान आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल आटे का बहरान भी आ गया। ये जो लोग हैं, इंसान है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से? ये गवर्नमेंट बाहर से गंदम महंगी बाहर से गंदम मंगाती है। यही जनाब हमें पैसे दे, हमें खाद दे, तो जनाब ये सारी गंदम मुल्क से ज्यादा हो जाएगी। उनको नजर नहीं आ रहा, वो तो कहते सब नहीं, सब रिश्वत करप्ट, जहाँ करप्ट लोग जहाँ जाएंगे तो जनाब यही हो कुछ होगा। फिर करप्ट लोग हैं, बिल्कुल करप्ट लोग हैं। आप तो बताएं मुझे, जिस इदारे में चले जाएं, रेवेन्यू का हो, पुलिस का हो, डॉक्टर हो, या किसी महकमे में चले जाए, हर जगह करप्शन हो रही है। हुक्मरान भी करप्ट है और हर इदारे का सरबराह भी करप्ट है। आवाम का कहना है कि दावे किए जाते हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है खाद के हवाले से। यूरिया खाद बहावलपुर में नायाब नहीं है, मिल ही नहीं रही है। अगर मिल रही है किसी को तो बड़ी चोरी छुपे, वो भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद, इस हवाले से अपडेट किया। जो करेंगे डेरा गाजी खान का, जहाँ पर यूरिया खाद का बहरान जारी है। खाद की एक बोरी लेने के लिए किसानों की तवील कतारें लग चुकी हैं। मजीद बात करेंगे रजा मलिक ने मेजबान किया। रजा मलिक, बताएगा क्या सूरत हाल है खाद के वहाँ पर? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी जो है वो खाद का बहरान बदस्तूर मौजूद है। और इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो खाद है वो 1780 रुपये फी बोरी की बजाय खुलेआम 2000 रुपये फी बोरी जो है वो 200 रुपये फी बोरी जो है वो किसान से इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। अंगूठे पर निशानात लगाए जा रहे हैं। क्या जी ये अंगूठे पर कितने की बोरी दी आपको? 2000 रुपये दी। क्या आधन भी ये बोरी 2000 दी थी? 2000 से कितने बोरे निकल तक? एक बोरी। जी बिल्कुल, ये तवील कतार जो लगी है। हाँ जी, क्या दे खड़े जी? 2009 रुपये 9 रुपये चवाई दे, 2000 फीस। जी बिल्कुल, 10 रुपये उसके ऊपर भी जो है वो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। और एक बोरी दी जा रही है 1780 रुपये की। और ये तवील कतार में जो लगे हुए लाइन में लगे हुए लोग, ये एक बोरी के लिए इस कदर तवील कतार लगी है। और यहाँ पर जो रसीद दी जा रही है उसके ऊपर भी कोई ना तो पैसे लिखे जा रहे हैं, और वो जो रसीद है वो वापस रख ली जाती है। 10 रुपये 2000 रुपये जो है वो अंदर वसूल किए जा रहे हैं। और उसके बाद अंगूठे पर निशान लगा दिया जाता है ताकि एक बोरी से वो ज्यादा भी ना ले सके। और इस हवाले से मौका ये है कि जी महकमा ज़राअत की तरफ से जो हिदायत आई है उसके मुताबिक जो है वो ये बोरी जो है वो फरोख्त होगी 2000 रुपये में वो फरोख्त कर सकते हैं। हर जगह यही रेट जो है वो वसूल किया जा रहा है कि 2000 रुपये फी बोरी जो है वो फरोख्त की जा रही है। और अब ये तवील कतार में लगे किसान जो है वो 2000 रुपये देकर सिर्फ एक बोरी ले रहे हैं। अपना शनाख्ती कार्ड भी यहाँ जमा करा रहे हैं। उसके बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने डीजी खान की सूरत हाल से मुतालिक आपको बताया। लिया की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। खाद के हसूल के लिए काश्तकारों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। फिर झुग्गी में खाद डीलरों की मनमानी अरूज कर चुकी है। सरकारी निर्ख को पसपुश डाल दिया गया है, जबकि दुकानदार खाद 2150 रुपये में फी बोरी फरोख्त करने लगे हैं। किसानों का डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा सामने आ रहा है। अपडेट करेंगे आपको लिया की सूरत हाल से मुतालिक, जहाँ पर खाद के हसूल के लिए काश्तकारों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं।
पीर जुगी में खाद डीलरों की मनमानी भी अरूज पर पहुंच चुकी है। सरकारी नर्ख को पशे पुश डालकर दुकानदार खाद 2150 रुपये फी बोरी में फरोख्त करने लगे हैं। किसानों का डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, खानपुर के यूटिलिटी स्टोर्स अशिया खुरानोश की किल्लत बरकरार है। ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया खरीदने के लिए शहरी खवार होने लगे हैं। आटा, घी और चीनी सिरे से गायब है, जबकि खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद बात करेंगे ज़िशान डोगर से। ज़िशान, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर और आम यूटिलिटी स्टोर हैं और जो सस्ते बाज़ार कायम किए गए हैं उसके ऊपर आम आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, चीनी, आटा, घी मुहैया किया जा रहा है। लेकिन शहरी जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे चीनी, घी और आटा नहीं दस्तयाब। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। सब बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर पर आप आए इस हवाले से। जनाब, आते हैं, चक्कर लगा लगा के चले जाते हैं। ना चीनी मिलती है, ना आटा मिलता है, ना घी मिलता है। जहाँ भी चले जाएं, इमरान खान साहब दावे तो बहुत करते हैं, हाँ जी, कि वहाँ चीनी, आटा और घी मिल रहा है, मगर यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। नायाब हो चुके हैं ये तीनों चीज़ें। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी बता रहे हैं, यहाँ पे चक्कर लगा के ये थक चुके हैं। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स पे, जो कानपुर में जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं उन पे घी, आटा और चीनी नहीं मिल रहे। आटा, घी और चीनी सिरे से गलत। शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मैपको का रीजन भर में लाइन लॉसेस को पूरा करने का अनोखा इक़दाम। सारिफिन की जेबों से करोड़ों रुपए निकलवा लिए गए हैं। जले हुए मीटरों की मद में मैपको ने औसत बिल भिजवाए हैं। सारिफिन सर्दियों में भी गर्मियों के बिल अदा करते रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। तैयब, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? मैपको हकाम ने लाइन लॉसेस को पूरा करने के लिए अनोखा कदम उठाया है कि वो तमाम बिल्स जो कि उनको वसूल नहीं होते या डेड डिफॉल्टर्स की नज़र हो जाते हैं, मगर अपनी रिकवरी के अंदर उन्होंने वो तमाम तर पैसे शो करवाने होते हैं, उनको एक नए तरीके के साथ रिकवर किया जाता है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका मीटर खुदा खासा जल जाता है या मामूली ख़राब हो जाता है, तो उसके मीटर को बाकायदा टेक्निकल फॉल्ट के जला हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसको फाटल डिक्लेयर करने के बाद जब मेंटेनेंस लेबॉर्ट्री के अंदर जाता है तो उस लेबॉर्ट्री के अंदर रिपोर्ट तरतीब दी जाती है। और उस रिपोर्ट के अंदर खुसूसी तौर पर कह दिया जाता है कि इस मीटर के ऊपर तकरीबन 4000 रुपये का या 5000 रुपये पर महीने का जो बिल है वो आता है, इसलिए इसको वो डिडक्शन एवरेज जो है वो डाल दी जाए। उस डिडक्शन एवरेज के बाद तकरीबन जब तक उस शहरी का नया मीटर नहीं लगता उसको वही बिल जो है वो अदा करना पड़ते हैं। अगर हम मैपको की बात करते हैं तो मैपको के पास गुज़िश्ता 6 माह से जो बिजली के मीटर हैं वो नायाब हो चुके थे, उनके पास दस्तयाब नहीं थे, जिसकी वजह से वो तमाम शहरी जिनके मीटर जल गए थे उनको 3 माह से ज़ायद तक वो जो डिडक्शन बिल है वो अदा करना पड़ा है, जिससे वो तमाम सार्फिन जिनका जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर मीटर जला था और उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी थी मीटर तब्दील करने के हवाले से, उनको नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर के अंदर भी वही जुलाई वाला बिल जो है वो भरना पड़ा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैपको ने रीजन भर के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद डिक्लेयर किए हैं 6 माह के अंदर अंदर। तो मैपको के जो सार्फिन हैं उनकी जेब से करोड़ों रुपये निकलवाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन मीटर की मद के अंदर, कि उन तमाम लोगों ने सार्फिन को एवरेज बिल डाल दिए थे और सार्फिन ने जब तक उनको नया मीटर नहीं मिला वही पुराने बिल अदा किए हैं जो कि उनको जुलाई में, जून में या मई के महीने में लग के आया था। वो उन्होंने वो तमाम के तमाम बिल जो कि उनको गर्मियों में लग के आए थे उन्होंने वो अक्टूबर, सितंबर और नवंबर के अंदर अदा किए हैं। जी, मैपको का काम सामने आया है, बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबरान की 9 आसामियां ताहाल खाली हैं। PPSC में 12 मेंबरान से काम चलाया जाने लगा है। मेंबरान की कमी से उम्मीदवारान के इंटरव्यूज़ और दीगर मामलात मुतासिर हो रहे हैं। PPSC का मेंबरान की खाली आसामियां पूरी करने के लिए मरासला। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान की आसामियां 6 माह से खाली हैं। अपडेट करेंगे आपको, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबरान की 9 आसामियां ताहाल खाली हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, मैं ज्वाइन किया है कैसर खोकर ने। कैसर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? कमीशन में 9 मेंबरान की सीटें खाली पड़ी हुई हैं और सिर्फ 12 मेंबर काम कर रहे हैं और 9 मेंबरान की सीटें खाली होने की वजह से जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू मुतासर हो रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मामला मुतासर हो रहे हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला लिखा है कि खाली आसामियां पूरी की जाए, लेकिन 6 माह से ये सीटें खाली पड़ी हैं, आसामियां पूरी नहीं की जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर अपडेट करने के लिए। कुछ दीगर अवामी मसाइल से मुतालिक आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया के नामुकम्मल मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। कसूरी चौक से बोतला टाउन रोड की तामीर नामुकम्मल है। खस्ता खाल रोड के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम।
بالکل واسا کی نااہلی ہمیں شہر کی مختلف شاہراہوں پر جو ہے وہ نظر آتی ہے. جو بنی ہوئی سڑکیں ہوتی ہیں، عوام یہ شکایت کرتی ہے کہ بنی ہوئی سڑک ہوتی ہے لیکن سیوریج لائن ڈالنے کے لیے توڑ دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سڑک کو اسی حالت میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی حالت میں یہاں ملتان کے جو کسوری چوک ہے، یہاں کی بودلہ ٹاؤن کی سڑک جو ہے یہ بھی اسی حالت کا شکار ہے. میرا کیمرہ مین نظیم آپ کو دکھائے تو یہ جو ہے اسی طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سڑک، جس کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی تاجر ہیں اور جو علاقہ مکین ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے. بات کرتے ہیں تاجر سے. بھائی جان بتائیے گا کب سے ٹوٹی ہوئی ہے سڑک، کب کام ہوا تھا اور کب سے نہیں بنی سڑک؟ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. انہوں نے تقریباً 16 پیپ ڈالنے تھے، کہہ گئے تھے کہ جی آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر ہم ریپیئرنگ کر دیں گے. اب 1 سال ہونے والا ہے، یہ ان کی ریپیئرنگ ابھی تک مکمل نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک ہمیں روزانہ یہ مٹی کھانی پڑتی ہے. کوئی پانی مارنے والا بھی یہاں پر بہت کم ہی آتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے ہیں روڈ والے. تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ پریشانی، اگر ہو سکے تو عوام والا جلد سے جلد بنوا دیں تو مہربانی ہوگی ان کی. ٹھیک ہے، بالکل جی مہربانی ہوگی. علاقہ مکین یہ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ سڑک کو جو ہے دوبارہ سے بنوا دیا جائے کیونکہ واسا کی جانب سے جو نامکمل ہے. بہت شکریہ ابراہیم کیا. ملتان کا تاریخی دروازہ دہلی گیٹ خستہ خالی کا شکار ہے. انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث قدیم ورثہ غیر محفوظ ہونے لگا ہے. دہلی گیٹ پہ جگہ جگہ لگے پیراپلیکسز اور اشتہارات کے باعث اس کی خوبصورتی بھی مان پڑ چکی ہے. مزید بات کریں گے سہیرا طارق سے. جی سہیرا. جی بالکل، ملتان کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے اور یہاں کی اگر تاریخی چیزوں کی، تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دور دراز سے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں. اس وقت میں دہلی گیٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر انتظامیہ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے دہلی گیٹ بھی باقی تاریخی دروازوں کی طرح خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہلی گیٹ کے اوپر جو ہے مختلف پینا فلیکس لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. اشتہار لگا کر اس کی خوبصورتی جو ہے اس کو خراب کیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے مختلف ٹھیلے والوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کر رکھا ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے. آپ بتائیں گے دہلی گیٹ یہ قدیم دروازہ ہے ملتان کا، لیکن اس کی حالت زار پہ کیا کہیں گے؟ اس کی بحالی ہونی چاہیے. آنے والے وقت میں پتہ ہونا چاہیے چوک دہلی گیٹ ایک قدیمی دروازہ ہے، ہمارے عرصہ دراز سے بڑوں کی ایک نشانی ہے. اس کی تعمیراتی کا کام ہونا چاہیے. اس کی جون سی نا یہ ایک نشانی ہے. یہ مغلوں سے، یہ محمد بن قاسم کے دور سے یہ بعد میں یہ بنا ہوا اس کی نشانی ہے، لیکن اس کی ذرا نا دیکھ بھال کرنی چاہیے. جیسا کہ آپ نے لوگوں کی بات بھی سنی ہے، یہاں پر یہ جو دہلی گیٹ اور ملتان کے دیگر قدیم دروازے ہیں یہ ملتان شہر کی ایک نشانی ہے، ملتان شہر کی پہچان ہے، لیکن انتظامیہ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے. میاں والی میں محکمہ ایجوکیشن کی عدم توجہی گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کندیوالا کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے. بعض افراد نے اسکول میں جانور باندھ دیے ہیں جبکہ لاکھوں خرچ کر کے بھی محکمہ تعلیم کے افسران اسکول کو ہی بھول چکے ہیں. دوسری جانب اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی تعداد کم ہونے کے باعث اسکول بند کر دیا ہے. مزید بات کریں گے اختر مجاز سے. جی اختر. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کندے والا. یہ میاں والی کا علاقہ ہے اور ایجوکیشن کے شعبہ میں انقلاب لانے والی حکومت کے دور میں دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس سکول میں جانور بندھے ہوئے ہیں، بھوسا اسی سکول میں پڑا ہوا ہے، جبکہ یہاں کے جو مکین ہیں ان کے جو بچے ہیں کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دوسرے سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. یہ سکول کی حالت ہے، اس میں خود رو پودے اگے ہوئے ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ سکول کی دیوار توڑ کر ساتھ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے جانور یہاں پہ باندھ دیے اور اپنا کچرا دیگر سامان جو ہے اسی سکول میں وہ رکھ رہے ہیں. مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مکین کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کے بچوں کو جب سکول جاتے ہیں یہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے جی آپ اس حوالے سے؟ بھائی اس وقت جو ہمارے اس شہر کا حالات ہے نا وہ تعلیم کے حساب سے بہت ناقص ہو چکے ہیں، کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں نا وہ اب تقریباً 10 کلومیٹر ہرنولی ہم سے دور ہے، وہ ادھر پرائیویٹ سکولوں میں دھکے کھا رہے ہیں. لیکن ہمارے اس شہر کے جو 2 سکول ہیں، ایک بچیوں کا ایک بچوں کا بھی ہے، وہ بھی بند پڑا ہے تقریباً 10 سال سے. کوئی ادھر نہ کوئی پوچھنے والا آیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سرکاری عمارتیں تباہ ہو گئی ہے. اس کو کوئی نہ پوچھنے والا ہے ادھر، نہ کوئی ہماری کو مدد کرنے والا ہے. برائے مہربانی ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس گاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ تعلیم کے لیے جو مسائل ہیں حل کریں، کیونکہ ہماری آبادی جو ہے تقریباً غریب
लोग इधर रहते हैं, चलो अमीर लोग तो अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब जो हैं बच्चे वो अभी तक घरों में बैठे हैं, उनको हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों में उनको पढ़ा सके। जी, स्कूल बंदिश के बायस मकीनों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत स्कूल ज्यादा खंडरात का मंजर पेश करने लगा वक्तर आपने अपडेट किया। मेंशनाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत खस्ता हाल है, बिल्डिंग की छतों से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे हैं। मजीद बात करेंगे इस हवाले से शेख गुलाम मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिंचनाबाद की 1991-92 में बनने वाली बिल्डिंग इस वक्त मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी है और छतों से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे ये छत के टुकड़े गिर रहे हैं। अच्छा बेटा बताइएगा, ये छत के टुकड़े गिर रहे हैं और कब से ये सिलसिला जारी है, कोई जानी नुकसान या कोई और नुकसान तो नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे पास बिल्डिंग है ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है और अक्सर ही यहाँ से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ गैलरी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा टुकड़ा गिरा है सीमेंट का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा हमारी कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर भी अक्सर टुकड़े गिरते रहते हैं, लेकिन अभी तक हम महफूज हैं। लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टुकड़े रोज़ की बुनियाद पर गिर रहे हैं। क्या ये बिल्डिंग अब काबिल इस्तेमाल है या इसमें आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? नहीं, ये प्रिंसिपल साहिबा ने इस बिल्डिंग को खाली करवा लिया, खारदार तारे लगा के इसको बंद कर दिया गया है और बच्चों के लिए फ़िलहाल ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है। अच्छा बेटा बताइएगा बिल्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्डिंग जिस बिल्डिंग की दीवारें और छत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है और हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने इस बिल्डिंग को डेंजरस करार दे दिया है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई के निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि वो इस बिल्डिंग को नए सिरे से तामीर करवाए ताकि हम अपनी स्टडी को अच्छी तरह से जारी रख सकें। थैंक जी बिल्कुल, तलबा का कहना है कि इस बिल्डिंग को आज से नौ तामीर किया जाए ताकि तलबा बेखौफ व ख़तर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, बिल्डिंग को खतरनाक करार देते हुए इसको खारदार। किसने कितना फंड इस्तेमाल किया है, तारीखी बजट के पहले 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सूबाई वज़ीर ख़जाना हज जवाबत का शहर रहीम यार खान दूसरे नंबर पर रहा। रहीम यार खान में 45% फंड इस्तेमाल किए गए हैं। सरगोदा 44% फंड के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रामे से। अली बताएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? अली रामे से भी रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें कि रहीम यार खान में 45% फंड्स इस्तेमाल किए गए हैं। सरगोदा 44% फंड्स के साथ तीसरे नंबर पर है। मुल्तान 34% और डीजी खान में 32% फंड्स खर्च किए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में 32% और बहावलपुर में 30% फंड्स खर्च हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे, अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अली रामे बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पंजाब में उन्होंने अपना तारीखी बजट जो है वो दिया, लेकिन पहले 6 माह के ऊपर जो निसफ माली साल गुजर चुका है उसमें यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें सिर्फ 25% तमाम सूबाई इदारे जो है वो बजट खर्च कर चुके हैं। अब इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस जिले में कितना बजट जारी किया जाएगा उसकी भी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। तो इस यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा तो जो जिले की कारकर्दगी रही है वो तो नारोवाल है, जहाँ पर 50% से ज्यादा का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत खर्च कर पाई। और उसके बाद जो जिला दूसरे नंबर पर है वो रहीम यार खान है, जहाँ पर यूटिलाइजेशन जो है 45% रही है। उसी तरह डीजी खान में 32% और खानेवाल में 40%, जबकि लोधरा 27% कारकर्दगी रही। और मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में जो जिलाई सतह पर जो पैकेज दिया गया था, डेवलपमेंट बजट दिया गया था, उसमें 34% बजट जो है वो अब तक खर्च हो पाया है। और इसी तरह जो दीगर इनके अजला है जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी यूटिलाइजेशन जो है वो मुनासिब नहीं रही। जब मियांवाली की बात की जाए तो मियांवाली में बजट यूटिलाइजेशन 28% रही है और सरगोदा में 44% बजट जो है यूटिलाइज किया गया। और इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में 32%, लिया में 26% और बहावलपुर में 30% बजट जो है वो खर्च किया गया। अब इसमें जो है वो 42% के साथ जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। अब यूटिलाइजेशन के हवाले से क्योंकि पंजाब हुकूमत ने टारगेट दिया था तमाम सूबेदारों को पहले निसफ माली साल के दौरान कम से कम 50% बजट जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए, लेकिन जो पहले 6 माह के दौरान जो बजट की यूटिलाइजेशन है वो मुनासिब गैर तसल्ली बख्श रही। और इस पर अब वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो जल्द तमाम सूबाई इदारों की एक मीटिंग जो है वो कॉल करेंगे और उसमें तो अदारों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा लिया जाएगा। और पंजाब ने पहले हिदायत दी थी कि जो बजट की यूटिलाइजेशन में कारकर्दगी दिखाएगा उसको उनके तारीफी इसनाद जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन जो काम नहीं किया करेगा उनको अदम इत्मीनान का जो है वो अदम इत्मीनान का लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। तो
तो इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब ने ये लेटर जारी किया और अब मजीद लेटर जो है वो जारी किए जाएंगे। जी, मजीद लेटर्स भी जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया लिया हमें अपडेट करने के लिए। तरक्याती मनसूबों में फंड्स की कमी हुई दूर, कमिश्नर बहावलपुर का एहसन इख्ताम। बहावलपुर और रहीम यार खान के 70 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स मंजूर कर लिए हैं। फंड्स मुतादिद मनसूबों की तकमील में इस्तेमाल होंगे। अपडेट करेंगे आपको। तरक्याती मनसूबों में फंड्स की कमी अब दूर हो चुकी है। कमिश्नर बहावलपुर का एहसन इख्ताम सामने आया है। बहावलपुर और रहीम यार खान के 70 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। फंड्स मुतादिद मनसूबों की तकमील में इस्तेमाल होंगे। मुल्तान शहर की सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। 100 वर्कर्स पर मुश्तमिल स्पेशल सफाई स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। स्पेशल सफाई स्क्वाड अवामी शिकायत पर सफाई का काम सर अंजाम देगा। तमाम वर्कर्स रोजाना एक यूनियन काउंसिल में जीरो वेस्ट को यकीनी बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में यूनियन काउंसिल नंबर 2 बोसन रोड के मकीनों का वासा के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बोसन रोड टायर चलाकर ब्लॉक कर दिया है, जबकि मुजाहिरीन के क्या मुतालिबात हैं, मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर। मुजफ्फरगढ़ के थर्मल रोड के रिहायशियों की सुनी गई। रेलवे फाटक से थर्मल बाईपास तक सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर थी। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। मुजफ्फरगढ़ थर्मल रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। थर्मल रोड के रिहायशियों की बिलाखिर कई साल बाद जो वो सुनी गई है और रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। 4.5 किलोमीटर ये लंबा जो है इब्तदाई मरले में ये रोड तामीर किया जाएगा, जिसके बाद 7.5 किलोमीटर थर्मल रोड से आगे तक जो है वो थर्मल कॉलोनी से आगे तक जो रोड तामीर किया जाएगा। इस वक्त ये रोड जो है वो रेलवे फाटक से थर्मल बाईपास तक बनाया जा रहा है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, यहाँ के मकामी हैं। ये मुझे बताएगा कि एक अच्छी खबर है, रोड की तामीर का काम शुरू हो चुका है। हाँ जी, अच्छी गाल है भाई। ये रोड का काम शुरू थी ना पे बहु अरसे से बाद आन के सुनी गई है। 4.5 किलोमीटर है बस ये बन रहा है। ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी नाल सुनिया गए। और भैया भी बेड़ा वजे शहर से टुटे पुटे पर मेहरबानी थी भी ठीक है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो यही कहते दिखाई देते हैं, जो मकामी अफराद हैं, कि इस रोड की तामीर सड़क की तामीर से शहरी खुश हैं। बहुत शुक्रिया मेरा आपने अपडेट किया। कोटादू में घर के बावर्ची खाने में सिलेंडर फट चुका है। हादसे में खातून और 4 बच्चे झुलस चुके हैं। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है, जिसको निश्तर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मज़ीद बात करेंगे तैमूर रथुर से। जी तैमूर। आज बिल्कुल ये कोटदू में घर के किचन में ये अचानक आग भड़क उठी और आग के नतीजे में एक खातून और 4 जो बच्चे हैं ये जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 बच्चे और एक खातून जो है ये मामूली जख्मी हुई है। जो एक बच्चा है वो शदीद तौर पे जख्मी हुआ है। उसका जिस्म जो है वो काफी हद तक झुलस गया है और बताया ये जा रहा है रेस्क्यू जराये के मुताबिक कि ये आग जो है घर के किचन में गैस का सिलेंडर फटने की वजह से अचानक किचन में आग लग गई, जिसकी वजह से जो किचन में मौजूद बच्चे और खातून थे वो झुलस गए, जिसमें जो शदीद जख्मी बच्चा था जिसका चेहरा और जिस्म झुलस गया था। इस बच्चे को THC अस्पताल कोटदू मुंतकिल किया गया था और यहाँ से इसको निश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जो बच्चा है इसका चेहरा और जिस्म जो है वो बुरी तरह झुलस चुका है। जो 3 बच्चे और खातून थे वो मामूली जख्मी थे, उनको THC अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी, निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बहुत शुक्रिया तैमूर आपने अपडेट किया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मजीद बोझ बढ़ा दिया है। वफाकी बजट पेश होने के बाद से 11वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी है। 15 जून 2021 के बाद से पेट्रोलियम मसनूआत 39 रुपये 27 पैसे महंगी हुई हैं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत सबसे ज्यादा 39 रुपये 27 पैसे बढ़ाई गई। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 33 रुपये 86 पैसे महंगा हो चुका है। लाइट डीजल की कीमत में फी लीटर 36 रुपये 89 पैसे का इजाफा हुआ है। मिट्टी के तेल की बात की जाए तो फी लीटर 36 रुपये 48 पैसे बढ़ाई गई है। अपडेट करते चलें आपको। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मजीद बोझ बढ़ा दिया है। वफाकी बजट पेश होने के बाद से 11वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी हैं। मजीद बात करेंगे अवैस कयानी से। अवैस, क्या आदाद शुमार सामने आए हैं? देखिए, 11वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत जो है महंगी की गई है। 15 जून 2021 के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो तकरीबन 40 रुपये तक जो है महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत सबसे ज़्यादा जो है
वो 39 रुपये 27 पैसे बढ़ाई गई है। पेट्रोल की कीमत मुल्की तारीख की 32 पर पहुंच चुकी है। इसी अरसे में हाई स्पीड डीजल की 3 लीटर जो है वो 33 रुपये 86 पैसे जो है वो भी महंगा हुआ है और मट्टी के तेल की कीमत 3 लीटर जो है वो 36 रुपये 48 पैसे बढ़ाई गई। जी ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अपडेट करें आपको कि वफाकी हुकूमत ने बजट पेश होने के बाद से अब तक 11 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। 15 जून 2021 के बाद से पेट्रोलियम मसनूआत 39 रुपये 27 पैसे महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत सबसे ज़्यादा 39 रुपये 27 पैसे बढ़ाई गई है। उधर बहावलपुर में सरकारी अराज़ी की गैर कानूनी अलाटमेंट का मामला मुलजिम लतीफ़ साबरी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के एडमिन जज सजाद अहमद शेख ने समाअत की है। बड़ा फ्रॉड केस है, मुलजिम सिर्फ एक क्लर्क था, अदालत ने रिमार्क से हैं। जबकि अदालत ने हुक्म सादर किया है कि मुलजिम पर जिम्मेदारी का तयन करें, रिपोर्ट भी पेश करें। मुलजिम लतीफ़ साबरी 2007 से इश्तिहारी था। मुलजिम की बुरी जमानत में 22 जनवरी तक तौसी की गई है। आइंदा समाअत पर नैब हुकाम से इल्ज़ामात से मुतालिक तफ्तीश तलब कर ली गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का 5 साल से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का नोटिस। सूबा भर की अदालतों में मुकदमात के फौरी फैसले का हुक्म दिया है। साल 2017 से पहले के सिविल मुकदमात 3 माह में हल करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का फैमिली और गार्डियन मुकदमात को 2 माह में निपटाने का हुक्म भी सामने आया है। ज़िला अदलिया में 95,361 सिविल मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। ज़िला अदलिया में 11,193 फैमिली मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। लेबर कोर्ट मुल्तान में जज की अदम तैनाती। लेबर कोर्ट में 800 से ज़ायद केसेज अल्तवा का शिकार हैं। लेबर कोर्ट में दादरसी के लिए आए सालीन परेशानी का शिकार हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे मुल्तान की लेबर कोर्ट के हवाले से। तो मुल्तान लेबर कोर्ट में जो आने वाले मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी जो मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें रुकी होती हैं या जिनको दीगर मुलाजमतों से निकाल दिया जाता है, तो लेबर कोर्ट ही वाहिद जो सहारा होती है उनको उनकी दाद रसी के हवाले से। मुल्तान लेबर कोर्ट की बात करें तो एक साल में 419 मुकदमात के जो हैं वो फैसले किए गए। और उसके बाद अब इस वक्त लेबर कोर्ट की जो जज हैं वो इस वक्त तैनात नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। और उन साइलिन को कितने मसाइल का सामना है, लेबर कोर्ट एक्सपर्ट हमारे साथ फरुख तैमूर चांडी हैं, एडवोकेट हैं। पहले भी जो मजदूर लोग हैं या छोटे तबके के लोग हैं उनको मसाइल का सामना था। जून में जज साहब आए थे, आरिफ खान नियाज़ी साहब, जो तकरीबन 7-8 माह यहाँ रहे हैं और बहुत अच्छे फैसले किए उन्होंने। बहुत अच्छे जज थे, काबिल कंपिटेंट जज थे। अब उनका इस महीने में मेरे ख्याल जनवरी शुरू में तबादला हो गया है, तो अभी सीट खाली पड़ी हुई है। इधर बेशतर जो हैं मुलाजमीन हैं वो इधर आते हैं, धक्के खा के चले जाते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा करेंगे कि फिल फौर वहाँ पे जज तैनात करें, ताकि जो छोटे मुलाजमीन हैं, छोटे तबके के मुलाजमीन होते हैं, ये बेचारे धक्के खाते हैं, डेली बेसिस पे पेशन पे आते हैं, जज अब नहीं है इधर। इसलिए तो मेरा मुतालबा तो यही है चीफ जस्टिस साहब से कि फिल फौर लेबर कोर्ट का जज तैनात किया जाए। इस वक्त जो 800 से ज़्यादा केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और फौरी तौर पर साइलिन और वकला की जानिब से लेबर कोर्ट के जज की तैनाती का मुतालबा। जी ठीक है माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान से आपको खबर दें, मौसम बेहतर होने से एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। शारजा से आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ लैंड कर दी गई है। तमाम परवाज़ें 2 से 3 घंटे ताख़िर का शिकार रहीं। बेहतर होने पर परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई है। अपडेट करेंगे आपको मुल्तान एयरपोर्ट से, जहाँ पर मौसम बेहतर होने से एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। मुल्तान में गंदम के काश्तकारों के लिए यूरिया खाद नायाब हो चुकी है। वक्त पर खाद न मिलने की वजह से काश्तकारों ने पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताइएगा। शहर औलिया मुल्तान में भी जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह जो हमारे काश्तकार भाई हैं वो खासे परेशान है, क्योंकि यूरिया खाद की जो किल्लत है, किल्लत के साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से बुलंद व बाला दावे किए जा रहे हैं कि यूरिया खाद की फराहमी के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल
ہوا کی مانند جی ہیں، کیونکہ کاشتکار ہمارے خاصے پریشان ہیں. دوسرے پانی کا وقت ہے گندم کی کاشت کے بعد سے جو ہے، لیکن ابھی تک جو یوریا کھاد کی قلت تو پوری نہیں پتہ. میرے ساتھ آج میں کھیت میں موجود ہوں، میرے ساتھ یہاں پر کاشتکار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یوریا کھاد کا. یوریا کھاد کا کیا معاملہ چل رہا ہے، نہیں ملی تو پیداوار کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ یہ جو حکومت پاکستان نے ہمارے ساتھ جو اتنے بڑے وعدے کیے ہیں کہ ہم نے کہیں گے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا پہلے پانی کے اوپر جو ہے نا یوریا کھاد نہیں ملی. اب دوسرا پانی آ گیا، دوسرے پانی کے اوپر بھی ہمیں کھاد کی بہت زیادہ قلت ہے، کھاد مل نہیں رہی. ہم کاشتکار جو ہے نا بیچارے رلے پڑے ہیں اور کہیں گے ہمارے پاس جو ہے نا یہ گندم کے لیے اگر یوریا نہیں ملے گی تو ہماری فصل جو ہے نا وہ متاثر ہوگی اور کہیں گے گندم کی پیداوار صحیح نہیں ہوگی. گندم کی پیداوار بھی صحیح نہیں ہوگی، کم ہوگی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گے ملتان میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے پولیو ورکرز کی ٹریننگ جاری ہے. 24 جنوری سے پولیو مہم کا آغاز کیا جائے گا. ہر یونین میں 4000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. مزید بات کریں گے علیشبہ آصف سے. جی علیشبہ، کیا تفصیلات ہیں؟ ملتان شہر میں 24 تاریخ سے پولیو مہم شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں پولیو ورکرز جو ہیں گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے. اسی طرح ہسپتالوں میں اور دوسرے انسٹیٹیوٹ میں بھی ورکرز جا کے پولیو کے قطرے پلائیں گے. اسی حوالے سے گورنمنٹ سمرا پبلک ہائی اسکول میں ٹریننگ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پر جاری ہے، جس میں 25 ورکرز ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہے، ایک یونین کے یہ ورکرز ہیں کہ 4000 بچوں کو تقریباً پولیو کے قطرے پلانے. اس وقت میرے ساتھ ایریا انچارج جو ہیں مبشر حسن موجود ہیں. ہم نے جو ٹریننگ کے لیے بلایا ہوا اس میں ہم ان کو کورونا سے بچاؤ میں ہینڈ سینیٹائزنگ کے سٹیپ بتائیں گے اور احتیاطی تدابیر جو ویکسینیشن کرنے کی ہیں وہ بھی سکھائیں گے. اور یونین کونسل میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 4000 کا ہے، جس میں مین 3 ہاسپٹلز بھی ہیں، کارڈیالوجی، شہباز شریف اور فاطمہ ہاسپٹل. وہاں پہ بھی ہماری ٹیمز فکس ٹیمز بیٹھتی ہیں اور کام کرتی ہیں، بچوں کو ویکسینیٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ٹیمز گھر گھر بھی بچوں کو جا کے ویکسینیٹ کرتی ہیں. یہ مہم 28 تاریخ تک جاری رہے گی میڈم. جی بالکل، 24 سے لے کے 28 تک یہ مہم جاری رہی. اسی حوالے سے جو ایک یونین کے جو سکولز ہیں اس میں ٹریننگ جاری ہیں، پولیو ورکرز کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. ٹریننگ جاری ہے. بہت شکریہ علیشبہ، آپ نے اپڈیٹ کیا.